Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today's lecture outline is elastic and inelastic collision. Elastic collision in one dimension. Now, students, moving towards first topic, which is elastic and inelastic collision. There are two types of collision between more than two bodies. One is elastic and other is inelastic collision. According to the definition, we define an inelastic collision as a collision in which momentum is conserved but kinetic energy is not. यानी ऐसी collision between two bodies और more than two bodies जिसमें bodies का momentum तो conserve हो but उनकी kinetic energy conserve नहीं रहे, इस तरह की collisions को हम inelastic collisions का नाम देते हैं. For example, car crash, collision of a rubber ball with a hard surface. Similarly, for elastic collision, an elastic collision is defined as one in which both momentum and kinetic energy are conserved. यानी elastic collision एक ऐसी collision between two bodies or more than two bodies जिसमें momentum और kinetic energy उन bodies की conserve रहे या constant रहे. For example, billiard ball collision, collision of air molecules at ordinary temperatures. Here is the example of inelastic collision. Car crash. If two cars collide with each other, then you can see that what are the impact. और इस impact की वजह है ये है कि ये एक inelastic collision है जिसमें momentum of car तो conserve है मगर energy of the cars conserve नहीं है, वो यहाँ पर ज़ाया हो गई in term of sound, in term of damage, in term of heat energy. तो हम इस सूरत में कहते हैं कि ये आपके पास एक inelastic collision है. Here is the another type of inelastic collision. When two bodies collide with each other having masses m1 and m2 and having velocities v1 and v2, after collision they move together in a same direction with some velocity v. Here the velocities v1 is greater than v2. This type of collision is known as inelastic collision क्योंकि हमने यहाँ देखा कि v1 और v2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थी, दोनों बॉडीज की मासेस भी डिफरेंट थे, दोनों बॉडीज एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गई विद सम वेलोसिटी v. तो ये आपके पास एक inelastic collision है. नाउ इलास्टिक collision, बिलियर्ड बॉल जो आपके सामने मौजूद है, जैसे कि स्नोकर की जो क्यू बॉल है उसको हिट किया जाता है किसी भी कलर बॉल से, तो इस टाइप की कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का जिसमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है. सिमिलरली कोलिजन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल ये भी आपके पास एक तरह से प्योरली इलास्टिक कोलिजन को शो कर रहे होते हैं. नाउ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. Most actual collision fall into a range in between elastic and inelastic collision. ज़्यादातर collisions हम कहते हैं कि आपके पास elastic और inelastic collision के in between होती हैं, यानी कि ना ही वो purely elastic होती हैं और ना ही वो purely inelastic collisions होती हैं. The type of the collision in which before and after collision the motion appear only on a single line is called head-on collision. यानी कि अगर आपके पास आफ्टर कोलिजन एक सिंगल लाइन के अंदर मोशन शुरू हो जाए दो बॉडीज का, तो हम कहते हैं कि ये कोलिजन हेड ऑन कोलिजन है. इट इज आल्सो यूजुअली कॉल्ड एज कोलिजन इन वन डायमेंशन, और इसको हम इन अदर वर्ड्स कोलिजन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं. इट मे बी इलास्टिक और इनइलास्टिक. ये इलास्टिक भी हो सकती हैं और इनइलास्टिक भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. Now, elastic collision in one dimension. Consider two balls of masses m1 and m2 initially moving with velocities v1 and v2 over a straight line, and m1 approaches m2 to encounter a head-on elastic collision. After collision, let they are traveling with velocity v1 dash and v2 dash as shown in figure. यहाँ आपके पास हम एक डेरिवेशन यानी कि एक फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे कि अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन हुई है दो बॉडीज के दरमियान, तो उस इलास्टिक कोलिजन के नतीजे में
बिफोर एंड आफ्टर उनकी वेलोसिटीज में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे या ड्राइव करेंगे। द डायरेक्शन टू द राइट फॉर मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव। यहाँ अगर आप देखें दो बॉडीज हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, जो कि इनिशियली विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 के साथ मूव कर रही हैं। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर, दोनों बॉडीज कोलाइड एक साथ होती हैं तो मोमेंटम कंजर्व, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस लिहाज से दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करती हैं और आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन के अंदर v1 और v2 के साथ मूव करना शुरू कर देती हैं या v1 डैश और v2 डैश के साथ मूव करना शुरू कर देती हैं। Now elastic collision in one dimension. Now according to the law of conservation of momentum, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डेरिवेशन को। m1 v1 plus m2 v2 equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash, यानी कि before and after collision momentum will remain constant, और by rearranging this formula m1 v1 minus m1 v1 dash equals to m2 v2 dash minus m2 v2. Now taking m1 common, so we get m1 v1 minus v1 dash equals to m2 v2 dash minus v2, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। Similarly, according to the law of conservation of kinetic energy, half m1 v1 square plus half m2 v2 square equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 dash square, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की, तो हमने दोनों लॉस को फॉलो किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी। By taking half common, we get m1 v1 square plus m2 v2 square and m1 v1 dash square plus m2 v2 dash square। हाफ अगर हम दोनों जगह से कॉमन लें दोनों साइड्स पर, तो दोनों जगह से हाफ कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू ये बचेगी। Now elastic collision one dimension, rearranging the term and taking m1 and m2 as common, we have, अगर हम m1 और m2 को कॉमन लेते हैं और रीअरेंज करते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर, और m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। नाउ m1 v1 प्लस v1 डैश ब्रैकेट v1 माइनस v1 डैश इक्वल्स टू m2 v2 डैश प्लस v2 एंड v2 डैश माइनस v2। हमने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया इन दोनों साइड्स पर और इसको ओपन किया a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई जो कि v1 प्लस v1 डैश और v1 माइनस v1 डैश है, और दूसरी साइड पे v2 डैश प्लस v2 और v2 डैश माइनस v2 है आपके पास, हम इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से अगर डिवाइड करें जो कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बनाई थी, सो वी गेट m1 v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश m2 v2 dash plus v2 and v2 dash minus v2 divided by m1 v1 minus v1 dash and m2 v2 dash minus v2। ये ब्रैकेट आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और m1 से m1 और m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी हमारे पास आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव v1 plus v1 dash equals to v2 dash plus v2, हम इसे इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। नाउ रीअरेंज फॉर v2 डैश विच इज इक्वल्स टू v1 प्लस v1 डैश माइनस v2, अगर v2 डैश के लिए रीअरेंज करें तो आपके पास v2 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से इक्वेशन v1 प्लस v1 डैश माइनस v2 हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ v2 डैश इन इक्वेशन 1 फॉर v1 डैश, हम v2 डैश की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास v1 डैश की वैल्यू फाइंड कर सकें।
by putting the value of v2 dash m1 v1 minus v1 dash equals to m2 v2 की जगह आपके पास यहाँ पर v2 डैश की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी v1 प्लस v1 डैश माइनस v2 माइनस v2 माइनस माइनस क्योंकि प्लस फॉर्म करता है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इक्वल्स टू m2 v1 प्लस m2 v1 डैश माइनस 2 m2 v2 और आफ्टर दैट m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस 2 m2 v2 इक्वल्स टू m2 v1 डैश प्लस m1 v1 डैश। हम v1 की वैल्यूज को एक तरफ ले आए हैं, बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ इक्वेशन के ले गए हैं ताकि हम v1 की वैल्यू को कॉमन ले सकें। नाउ इसी फॉर्मूले को, इसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया रीअरेंज करके m2 v1 डैश प्लस m1 v1 डैश इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m2 v1 प्लस 2 m2 v2। अब यहाँ से आप v1 डैश को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी m2 प्लस m1 इक्वल्स टू v1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 v2। अब इस ब्रैकेट को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो इन दोनों वैल्यूज के नीचे ही पूरी वैल्यू आ जाएगी जो आपके पास m2 प्लस m1 है। तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी फाइनल इक्वेशन v1 डैश इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 v1 प्लस 2 m2 v2 डिवाइड बाय m2 प्लस m1। Recalling equation 4, v1 plus v1 dash is equals to v2 dash plus v2 by putting the value of v1 dash in equation 1। v1 dash की जो हमने वैल्यू निकाली है अगर उसे इसी इक्वेशन में पुट करें इक्वेशन 4 के अंदर, so we get v1 plus v1 m1 minus m2 over m1 plus m2 plus 2 m2 v2 over m1 plus m2 equals to v2 dash plus v2। नाउ हमें v2 डैश की वैल्यू निकालनी है तो आप v2 को ओनली को इस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी v2 डैश इज इक्वल्स टू v1 प्लस v1 m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस v2। v2 डैश इक्वल्स टू v1 m1 प्लस m2 प्लस v1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 v2 माइनस v2 m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 m2। v2 डैश इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दें अगर ब्रैकेट को तो v1 m1 प्लस v1 m2 प्लस v1 m1 माइनस v1 m2 प्लस 2 m2 v2 माइनस v2 m1 माइनस v2 m2 डिवाइड बाय m1 and m2। By cancellation the values v2 dash equals to 2v1 m1 plus 2 m2 v2 minus v2 m2 minus v2 m1। Now v2 dash equals to 2v1 m1 plus m2 v2 minus v2 m1 divided by m1 plus m2। v2 dash is equals to 2v1 m1 plus v2 m2 minus m1 divided by m1 plus m2, and finally we get v2 dash is equals to 2v1 m1 divided by m1 plus m2 plus v2 m2 minus m1 divided by m1 plus m2। Thank you students. If you have any problem or any query regarding this lecture, you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.